हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी फाइनल रिजल्ट्स का हम लोग वेट कर रहे हैं। अब फाइनल रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। जो रिजेक्शन स्लिप जो थे वो देखिए आपके फरवरी के महीने में रिजेक्शन स्लिप आपको दे दिए गए थे जब आपके मेडिकल हुए थे। किस वजह से रिजेक्शन हुआ, जो भी रीजंस थे रिजेक्शन के। अब एक वीडियो हमने पहले बनाया था कुछ दिन पहले, तो उसमें कुछ कैंडिडेट्स ने बड़ा ही गलत कमेंट्स किए कि अब कुछ नहीं लेटर्स आएंगे, अब कोई रिजेक्शन नहीं आएगा, अब किसी प्रकार का कोई लेटर नहीं आएगा, अब डायरेक्ट रिज़ल्ट आएगा, जो होना था वो हो गया। ऐसा किसी ने बताया। देखिए दोस्तों, यदि कोई गलत करेगा या किसी की कोई प्रॉब्लम है तो उसको भुगतना पड़ेगा। ये बता देता हूँ आपको कि ये हमने बताया था कि ज्वाइन होने के बाद भी प्रॉब्लम हो जाती है। कैसी प्रॉब्लम होती है, एक लेटर आपको दिखा रहे हैं, ऑर्डर कहाँ से जारी हुआ है वो आप देख सकते हैं। बस सबसे पहले तो इसका देखिए कहाँ से जारी हुआ है। या बाई स्पीड पोस्ट मोस्ट इमीडिएट, ऑफिस ऑफ द डीआईजीपी रीजनल रिक्रूटमेंट सेंटर आरआरसी सीआरपीएफ जालंधर। आपको पता है कि आपके नोडल एजेंसी सीआरपीएफ है इसमें, और सीआरपीएफ ने फिर फर्दर पूरे देश में अपने रीजनल रिक्रूटमेंट सेंटर बनाए जिनके नोडल अफसर एक डीआईजी रैंक के अफसर हैं, और वहाँ से फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ आपके सेंटर्स का अलग अलग फोर्सेस में, चाहे वो आपका पीटी हो, पीटी पीएसटी हो, या आपका मेडिकल हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एग्ज़ाम पहले हो चुका था आपका, री मेडिकल जो हुए। अब ये ऑर्डर क्या कहता है, किस डेट को जारी हुआ, 1 दिसंबर 2020 को जारी हुआ। ऑर्डर क्या कहता है, वेयर एज ए नोटिफिकेशन was published in Rozgar Samachar 21st July 2018 by the Staff Selection Commission, New Delhi, conducting recruitment of Constable GD in CAPFs, NIA, SSF and Rifleman GD in Assam Rifle Examination 2018. Accordingly, Constable GD Examination 2018 was conducted by Staff Selection Commission according to the scheme of examination prescribed by the Ministry of Home Affairs MHA. CRPF is designated as nodal CAPF for this recruitment examination. As per the MOU signed between SSC and MHA, Staff Selection Commission is responsible for notification, registration of application forms, conduct of computer-based examination, एंड प्रिपरेशन डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट मेरिट लिस्ट। तो ये सब काम किसने करना है, एसएससी ने करना है। कोऑर्डिनेटिंग सीएपीएफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, वैकेंसीज, कंडक्ट ऑफ पीएसटी, पीईटी, डीएमई, आरएमई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट्स एक्सेट्रा। फॉलोइंग हैव hereby been conducted by the recruitment of Constable GD examination 2018. Staff Selection Commission conducted the computer-based examination with effect from 11 फरवरी 2019 टू, ये देखिए ये गलत लिखा हुआ दोस्तों, ये 11 मार्च 2019 है, ये 20 गलत लिख दिया गया इसमें। For shortlisting the candidates for appearing in PET PST. The CAPFs conducted PET PST for shortlisted candidates. Whereas you, अब देखिए कैंडिडेट को जिनको नोटिस दिया है, were shortlisted in the computer based examination for appearing in PET PST and you appeared for PET PST at GC CRPF Sonipat on 20th August 2019. At the time of verification of biometric data while appearing of PTPST, you were detected involved in impersonation. अब इनका क्या प्रॉब्लम हुआ, योर बायोमेट्रिक डाटा, photographs and left thumb impression captured at the time of the computer based examination did not match with the ones captured at the time of PTPST. Accordingly, your PTPST was not conducted and an FIR number 0336 was registered against you at police station Rai district Sonipat, Haryana. Whereas it was
clearly mentioned in para 16 of the notice of the examination. If candidates are found to indulge at any stage in any of the malpractices during the conduct of examination, their candidature of the examination will be cancelled and they will be debarred from the examination of the commission for a definite period. Whereas, with a view to protect the integrity of the selection process and to prevent the candidates who are found to indulge in any unfair means entering into government service through manipulative practices, your candidature for the aforesaid examination is proposed to be cancelled and the process is proposed to be initiated of your debarment from appearing in the commission's future examination as per the extant policy of the commission. तो ये आप अच्छे से समझ रहे हैं क्या भाषा लिखी हुई है, क्यों लिखा हुआ है. एंड देयरफॉर यू आर कॉल्ड अपॉन टू शो cause as to why your candidature should not be cancelled due to the reasons enumerated above. If you have anything to say against the action proposed above, you may do so within 15 days from the date of the receipt of its notice. If no reply is received within 30 days from the issuance of this letter, it would be presumed that you have nothing to say against the proposed and an ex parte decision will taken against you in the matter. तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी ये कार्रवाइयाँ जो है वो चल रही है और जिनको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम निकलती है वो डिटेक्ट होती है प्रॉब्लम और वो सामने आ जाती है. अब ये पूरा नोटिस आपने देख लिया है, इसमें क्या हुआ है. तो ये एक्चुअली आपको बता देता हूँ क्या वजह है इनकी. कि ये वजह है कि जब ये पीटी पीएसटी के समय पर गए थे तो उस समय इनका थंब इम्प्रेशन मैच नहीं किया गया था. थंब इम्प्रेशन नहीं मैच किया तो इनको पूछताछ की गई. पूछताछ में ये बात यदि आ गई है, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई, इम्पर्सोनेशन का मुकदमा दर्ज हो गया सीआरपीएफ अथॉरिटीज़ या जहाँ पर भी इनका पीटी पीएसटी हो रहा था वहाँ पर. अब इनके पास में नोटिस आया है कि आपको क्यों ना डेबार कर दिया जाए और इनसे जवाब मांगा गया है एक्चुअली. तो दोस्तों इस प्रकार के जो लेटर्स हैं उनसे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ बता देता हूँ ये पहले से कार्रवाई चल रही थी, इनका तो मेडिकल भी नहीं हुआ किसी प्रकार का. इनको ये नोटिस जो मिला है ये इस संबंध में मिला है कि क्यों न आपके खिलाफ आप बताइए कि क्यों नहीं आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए और भविष्य में जो एसएससी के जो कमीशन के द्वारा जो एग्ज़ाम आयोजित की जाती हैं उसमें आपको डेबार कर दिया जाए. अब एक प्रश्न काफ़ी कैंडिडेट्स के जहन में उठता है कि क्या मेरा भी थंब नहीं मिला था. मुझसे 90 पेज का एक फॉर्म फिल करवाया था, मेरे फ़ोटो लिए गए थे, मेरे अंगूठा, मेरा हाथ का. तो देखिए दोस्तों कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम से मिसमैच हो जाता है, अंगूठा नहीं ले पाती है मशीन. तो यदि आप सही हैं, आप ओरिजिनल कैंडिडेट हैं, आपने किसी प्रकार का इम्पर्सोनेशन या किसी प्रकार का माल प्रैक्टिस आपने नहीं किया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है. इस लेटर को देखने के बाद में कुछ यूट्यूब पे या कुछ इधर उधर नोटिस चलने लगे, वायरल होने लगे कि ये नोटिस आ रहे हैं जिनके कोई भी कमी है, डॉक्यूमेंट्स में कमी है, उनके नोटिस आ रहे हैं. देखिए दोस्तों पूरा नोटिस हमने पढ़ा है, ये डॉक्यूमेंट्स की कमी का नोटिस नहीं है. यह नोटिस है कि जो कैंडिडेट एक इम्पर्सोनेशन करते हुए पकड़ा गया था कि जो मिसमैच हो रहा था अंगूठा रिटन एग्ज़ाम प्लस पीटी पीएसटी के समय, तो अब मेडिकल के समय कुछ कैंडिडेट्स का अंगूठा मैच नहीं हुआ है. तो उनके लिए मैं बता देता हूं कि यदि आप सही हैं, आप भी वो खुद कैंडिडेट हैं जो रिटन में उपस्थित हुए थे, जो पीटी पीएसटी में उपस्थित हुए, अब तीसरी बार जो आपका अंगूठा नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है. आपसे 90 पेज का जो फॉर्म आपसे फिल करवाया है तो ये समझिए कि आपकी पूरी कार्रवाई हो गई है. आपके पास इस प्रकार का कोई शो कॉज नोटिस नहीं आने वाला. ये शो कॉज नोटिस जो है पुरानी प्रक्रिया है जिसका अभी डाक इनके पास में आई है. इनसे 30 डेज़ के अंदर यदि जवाब नहीं देते हैं तो उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी. अब उम्मीदवारी कहाँ से रद्द की जाएगी कि इनको तो पीटी पीएसटी के समय पर ही इनको पकड़ लिया गया था.
तो दोस्तों यहाँ फिर बता देता हूँ, आपको रिपीट कर देता हूँ कि यदि आपका अंगूठा नहीं मिला था तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपसे फॉर्म फिल करवा लिया है। अब यहाँ पर देखिए, ये भी आपको ध्यान रखना है कि आप सही कैंडिडेट हैं, आपने किसी प्रकार का जो है गलत प्रक्रिया का इस्तेमाल आपने नहीं किया है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और यदि किसी ने गलत प्रक्रिया का इस्तेमाल किया है और वो बच गया अभी तक, तो वो तलवार उस पर हमेशा लटकती रहती है, वो कभी भी पकड़ा जा सकता है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको कोई आपत्ति है इससे वो भी बताएं। ये किसी को डिमोरलाइज करने के लिए नहीं है, ये वीडियो आप लोगों को जो अफवाहें फैल जाती हैं, जो भ्रांतियां फैल जाती हैं, इधर उधर मैसेज वायरल होने लगते हैं, कुछ शरारती तत्व जो होते हैं वो इस प्रकार के मैसेज को व्हाट्सएप सोशल मीडिया पर वायरल करते रहते हैं कि ये कैंसिल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो इससे घबराना नहीं है, आप सही हैं तो आप इंतज़ार कीजिए। 15 जनवरी से पहले पहले आपके रिज़ल्ट की कार्रवाई जो है वो निश्चित रूप से हो जाएगी। तो दोस्तों अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।